علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے الدرس الحادی عشرہ، لیسن نمبر 11۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس لیسن میں کیا کیا پڑھیں گے۔ تو یہ ہے لیسن نمبر 11۔ تو اس لیسن میں ایک نیو گرامیٹیکل کنسپٹ کو جانیں گے اور وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا ہے کہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، اور مرکب توصیفی ایک جملہ کا پارٹ ہے۔ جیسے مرکب اضافی آپ لوگ پڑھے تھے کہ وہ ایک پارٹ ہو سکتا ہے، وہ مرکب تام نہیں ہے، ایک جملہ نہیں بن سکتا۔ تو مرکب توصیفی بھی جملہ کا ایک پارٹ ہے، اور مرکب توصیفی وہ ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے۔ اور مرکب توصیفی کی دو اجزاء ہے، ایک موصوف اور دوسرا صفت۔ موصوف اور صفت۔ موصوف کیا ہے؟ موصوف جس کا صفت بیان کی جائے، جس اسم کی صفت بیان کی جائے، اور صفت تو صفت ہے۔ اور ایک رولز ہے مرکب توصیفی کا، کچھ رولز ہے، ان میں سے ایک ہے کہ موصوف مرکب توصیفی میں عربک لینگویج میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے، لیکن اردو زبان میں صفت پہلے آتا ہے اور موصوف بعد میں۔ جیسے اچھا لڑکا، اچھا یہ صفت ہے تو یہ پہلے آیا، لیکن عربک لینگویج میں کہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، ولد جید۔ اور ایک رول سے ہے کہ موصوف اور صفت دونوں چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی صفت موصوف کے تابع ہوتا ہے چار لحاظ سے۔ ایک ہے حالت کے لحاظ سے، حالت اگر رفع، نصب یا جر تینوں حالت ہوتا ہے تو حالت کے لحاظ سے، اور جنس کے لحاظ سے جینڈر مذکر اور مؤنث۔ اور اسی طرح لینگویج میں کہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، ولد جید۔ اور ایک رول سے ہے کہ موصوف اور صفت دونوں چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی صفت موصوف کے تابع ہوتا ہے چار لحاظ سے۔ ایک ہے حالت کے لحاظ سے، حالت اگر رفع، نصب یا جر تینوں حالت ہوتا ہے تو حالت کے لحاظ سے، اور جنس کے لحاظ سے جینڈر مذکر اور مؤنث۔ اور اسی طرح عدد کے لحاظ سے، اور تو موصوف اور صفت دونوں لحاظ سے ایک جیسا ہوتا ہے، عدد کے لحاظ سے، حالت کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے اور اسوت کے لحاظ سے۔ اگر موصوف رفع کے حالت میں ہوگا تو صفت بھی رفع کی حالت میں، اگر موصوف واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگا، اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگا۔ اسی طرح اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگا، یعنی موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی صفت چاروں لحاظ سے موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، آپ لوگ ٹھیک سے یاد کیجئے اور یاد رکھیے، دھیان میں رکھیے۔ اور ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر غیر عاقل، اگر موصوف غیر عاقل اور جمع مکسر ہو، غیر عاقل مینس
इंसान जिन और फरिश्ता ना हो। तो गैर आकिल और जमा मुकस्सर हो, जमा मुकस्सर मीन्स जो जामा सालिम ना हो। मुस्लिमूना, मुस्लिमातुन, ऐसे जो रूल्स है ना जमा सालिम का, तो वो रूल्स ना हो, जैसे जिबालुन है, अल अबू अबू है। तो अगर मौसूफ गैर आकिल प्लस जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी, जैसे अल अबू अबू वासियातुन। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो आई होप आप लोगों को मुरक्कब तौसीफी के बारे में क्लियर हो गया कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ये एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करती है, मौसूफ जिसकी सिफत बयान करती है, और सिफत जो सिफत है, और मौसूफ पहले आता है सिफत बाद में। और मौसूफ सिफत दोनों चारों लिहाज से एक होता है, हालत के लिहाज से और जिन्स के लिहाज से, आदत के लिहाज से और उसवत के लिहाज से। और जब आप लोग ये लेसन पढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी ठीक से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेसन में जो सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन करते हैं और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो वाक्य है उनको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंदी फिंजानुन सगीरुन। इंदी, यहाँ पर इंदा मुजाफ है और या ये मुतकल्लिम मुजाफ इलाई है कि मेरे पास। फिंजानुन सगीरुन, फिंजानुन मीन्स होता है काप, और सगीरुन मीन्स स्मॉल, छोटा, छोटा काप। तो यहाँ पर देखिए फिंजानुन, फिंजानुन हालत के लिहाज से रफा के हालत में है, तो सगीरुन सिफत जो है वो भी रफा की हालत में है। और फिंजानुन मुजक्कर का यानी मस्कुलिन का वर्ड है, लफ्ज है, इसीलिए सगीरुन भी मस्कुलिन का वर्ड है, मुजक्कर का। उसी तरह फिंजानुन वाहिद है, इसलिए सगीरुन भी वाहिद है। और उसी तरह उसवत के लिहाज से फिंजानुन नाकेरा है, इसलिए सगीरुन भी नाकेरा है। तो मुरक्कब तौसीफी में चारों लिहाज से एक है। तो सिफत सौगिरुन सिफत है, और किसकी सिफत बयान कर रही है, तो फिंजानुन का, काप का, छोटा काप। तो इनका ट्रांसलेशन क्या होगा, इन दी फिंजानुन सौगिरुन। इन द मुजाफ इलैहि मिन के मुब्तदा है, और ये मुरक्कब तौसीफी क्या है, खबर है कि मेरे पास एक छोटा काप है। तो आई हैव ए स्मॉल काप। अब इन द का कूबुन कबीरुन, इंदा का यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसमें जामिर के बारे में, जो मुजक्कर वाहिद मुजक्कर, हाजिर का वाहिद मुजक्कर के लिए का आता है जर की हालत का। तो यहाँ पर मुजाफ इलैहि मिल के मुब्तदा है। अब कूबुन कबीरुन, अब देखिए कूबुन मौसूफ है और कबीरुन सिफत है। कबीरुन एक सिफत है और किसकी सिफत बयान कर रही है, कुबुन का, तो ये मौसूफ है। और देखिए ये दोनों चारों लिहाज से एक है, दोनों रफा की हालत में है, दोनों वाहिद है, और दोनों मुजक्कर का लफ्ज है, और दोनों नाकेरा है। तो तुम्हारे पास एक बड़ा ग्लास है, तो यू हैव ए बिग ग्लास। तो क्लियर हो रहा है। तो इन दी आसिरुन कलीलुन, मेरे पास थोड़ा जूस है, आसिरुन मीन्स जूस। तो यहाँ पर देखिए मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक है, ए मुब्तदा है और ए खबर है। और ए तो इंदा और या ये मुतकल्लिम मुजाफ इलैहि मिलके मुब्तदा, और ए मुरक्कब तौसीफी है होके खबर है। और दोनों पूरा जुमला क्या है, जुमला इस्मिया है। आसिरुन कलीलुन चारों लिहाज से एक है। तो इनका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव ए लिटिल जूस। अब इंदा का लबानुन कसीरुन,
लबानुन कसीरुन के ज्यादा दूध। तो देखिए दोनों वर्ड्स लबानुन और कसीरुन चारों लिहाज से एक है, और एक क्या है, मुरक्कब तौसीफी है। लबानुन मौसूफ है और कसीरुन सिफत है। अरबिक में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में आता है। तो इनका ट्रांसलेशन करेंगे, यू हैव ए लॉट्स ऑफ मिल्क। क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ पर आप लोग इससे पहले लेक्चर में, पहले लेसन में मुरक्कब इजाफी पढ़ चुके हैं, अब इस लेसन में मुरक्कब तौसीफी पढ़ रहे हैं। तो मुरक्कब तौसीफी का जो रूल्स हमने बताया वो आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंदहु शैउन हारुन। अब इंदहु, इंदा मुजाफे और हु किसके लिए आता है? आप लोग तो मुरक्कब इजाफी में पढ़ चुके हैं कि हु जो जर की हालत, हुआ का जो, हुआ जमीर का जो जर की हालत का शक्ल है वो हु है। तो इंदहु उनके पास, तो उनके पास शैउन हारुन के गरम चाय। तो देखिए शैउन हारुन, शैउन क्या है, मौसूफ है, और हारुन सिफत है, गरम। तो दोनों लफ्ज को देखिए चारों लिहाज से एक है, एक दूसरे के ताबे है, दोनों रफा की हालत में है, और दोनों वाहिद है, और दोनों नकेरा है, और दोनों वाहिद है। तो ये मौसूफ सिफत है, मौसूफ और सिफत मुरक्कब तौसीफी। तो इनका ट्रांसलेशन होगा, ही हैज हॉट टी। शैउन हारुन नाकेरा है, लेकिन चाय के बारे में ये नहीं यूज होता है इंग्लिश में, इसलिए ही हैज हॉट टी। अब इंदहा माउन बारिदुन। अब देखिए यहाँ पर हा आया है जो मुजाफिलाई बन के वो मुअन्नस के लिए है, हिया का जो वो हालत जर का शक्ल है वो हा है, इंदहा यह फेमिनाइन के लिए यूज हो रहा है। इंदहा उनके पास, माउन बारिदुन ठंडा पानी। तो माउन क्या है, मौसूफ है, और बारिदुन सिफत है। अब देखिए उर्दू जुबान के साथ आप लोग मतलब कंफ्यूज मत कीजिए कि उर्दू जुबान में सिफत पहले होता है, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में मौसूफ पहले होता है और सिफत बाद में होता है। इसलिए माउन इनकी सिफत बयान की जा रही है, लेकिन ये पहले आया है, और सिफत जो है बारिदुन वो बाद में आया है। तो इंदहा माउन बारिदुन, बारिदुन मीन्स कोल्ड और माउन मीन्स वाटर। तो सी हैज कोल्ड वाटर। अब अल्फिंजानु सगीरू। अब देखिए हालत, दोनों का हालत रफा है। अब यहाँ पर जुमला नहीं है, सिर्फ मुरक्कब तौसीफी, एक जुमला का एक पार्ट यूज हुआ है, पार्ट है, सिर्फ मुरक्कब तौसीफी है। तो देखिए अल्फिंजानु मौसूफ है और सगीरू सिफत है। अब देखिए दोनों हालाते रफा में है, और जेंडर के हिसाब से, जिन्स के हिसाब से दोनों मुजक्कर है, मस्कुलिन का वर्ड है, और आदद के लिहाज से दोनों वाहिद है। लेकिन और एक चीज देखिए, आप जो पहले ऊपर पढ़ चुके हैं दोनों नाकिरा थी, लेकिन यहाँ पर दोनों मारेफा है। देखिए अलिफ लाम, अगर फिलजानु को मारेफा बनाया गया तो सिफत को भी मारेफा लाना पड़ेगा। तो देखिए अल्फिंजानु मारेफा है अलिफ लाम के साथ, इसीलिए सिफत भी मारेफा है। तो देखिए चारों लिहाज से मौसूफ सिफत एक होता है, यही दिखाया गया। तो अल्फिंजानु सगीरू के दा स्मॉल कप, छोटा कप, अलकुबुल कबीरू। देखिए मौसूफ मारेफा है, इसलिए सिफत भी मारेफा हुआ है। ये दा बिग ग्लास, ये मारे रफा की हालत में है, दोनों मुजक्कर वाहिद है,
और दोनों मारिफा है। अब नेक्स्ट देखिए अल आसिरुल कलीलू। अल आसिरुल कलीलू, यहाँ पर भी देखिए अल आसिरु मौसूफ है और अल कलीलू सिफत है। अल आसिरु मौसूफ है, इनकी सिफत बयान की जा रही है कि थोड़ा जूस। अब देखिए दोनों लफ्ज चारों लिहाज से एक है, दोनों मारिफा है, मौसूफ मारिफा है, इसलिए सिफत भी मारिफा आया है, और दोनों रफा की हालत में है, और दोनों वाहिद है, और दोनों मुजक्कर का वर्ड है, मस्कुलिन का वर्ड है। तो अल असीरुल कलीलू, द लिटिल जूस। अब अल्लबनुल कसीरू, ये भी मुरक्कब तौसीफी है। अल कसीरू सिफत है और अल्लबनु मौसूफ है, और मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक आया है। तो इनका ट्रांसलेशन होगा ए लॉट्स ऑफ मिल्क। अब उसी तरह है, अब वही चीज दिखा रहा है कि मौसूफ सिफत मुरक्कब तौसीफी कि मौसूफ सिफत कैसे चारों लिहाज से एक आता है, वही दिखाया गया है। और जो एक एक्सेप्शन है वो मैंने जो बताई वो अभी नहीं आया, अब डिटेल्स में, अब डीप में नेक्स्ट लेसन में आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। तो अशयुल हारू, तो यहाँ पर भी देखिए अशय मौसूफ है, अल हारू सिफत है, गरम ये सिफत है, अशय टी ये मौसूफ है, और दोनों चारों लिहाज से एक है। द हॉट टी। अलमाउल बारिदु, ठंडा पानी। अलमाउ मौसूफ है, अलबारिदु सिफत है, और दोनों चारों लिहाज से एक है। तो द कोल्ड वाटर। तो क्लियर हो रहा है ना? अगर कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, अगर कोई भी कंफ्यूजन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए मुहादसा है, बातचीत, कन्वर्सेशन है। तो कन्वर्सेशन में क्या क्या सेंटेंस है आप लोग पढ़ लीजिए कि आइनल फिंजानु सगीरू। आइना मीन्स क्या, वेयर। अल्फिंजानु सगीरू आप लोग पढ़ चुके हैं अभी। अल्फिंजानु सगीरू मीन्स द स्मॉल कप। तो अल्फिंजानु यहाँ पर मौसूफ है, असगीरू सिफत है, और दोनों देखिए चारों लिहाज से एक है। तो वेयर इज द स्मॉल कप। तो अल्फिंजानु सगीरू इंदी, अल्फिंजानु मौसूफ और ए सिफत, और दोनों मिलके मुब्तदा है, और इंदी खबर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि छोटा कप मेरे पास है, और ए मुजक्कर हामिद जो दिया हुआ है, इनसे आप लोगों को ये समझाना चाह रहा है कि ये मुजक्कर मस्कुलिन के लिए बोला गया ये सेंटेंस। तो इनका ट्रांसलेशन क्या होगा, द स्मॉल कप इज विथ मी। समझ में आ रहा है ना? अब मौसूफ सिफत, और एक बात ध्यान रखिए कि मौसूफ सिफत मिलके जो मुरक्कब तौसीफी होता है वो शुरू में भी आ सकता है और लास्ट में भी, आखिर में भी आ सकता है, यानी मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। यहाँ पर मारिफा है, यहाँ पर मारिफा है, इसलिए यहाँ पर खबर है, और अगर बाद में होता खबर आके तो वो नाकिरा बनता। तो यहाँ पर ये दोनों मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा के हालत में है और एक खबर है। तो द स्मॉल कप इज विथ मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइनल आसिरुल कलीलू, वेयर इज द लिटिल जूस। थोड़ा जूस कहाँ है। तो अल आसिरु यहाँ पर मौसूफ है, अल कलीलू सिफत है, और दोनों चारों लिहाज से एक है। मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक होता है, एक ही होता है, चारों लिहाज से होना चाहिए। तो अल आसिरुल कलीलू इंदी। तो इस सेंटेंस में जो ब्रैकेट में जो सलमा दिया हुआ है, इनसे आपको बताना ये चाह रहा है कि ये सेंटेंस जो है फेमिनाइन मुअन्नस के लिए है, और मुअन्नस का जो वाहिद मुतकल्लिम का जो इसमें जमीर आना है वो दोनों के लिए एक ही आता है, और उनका जो हालत जार का या ये सुकून शक्ल होती है
वो भी दोनों के लिए एक ही आता है, इसलिए देखिए दोनों में एक ही है। लेकिन यहाँ पर ये देख के समझाना चाह रहा है कि ऊपर का जो सेंटेंस था वो मुजक्कर के लिए था और नीचे का जो सेंटेंस है ये मुअन्नस के लिए है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है आइनल लबानुल कसीरु। अल्लबानु मौसूफ है, अल कसीरु सिफत है कि ज्यादा दूध। तो और आइना मीन्स वेयर, तो वेयर इज ए लॉट्स ऑफ मिल्क। अल्लबानुल कसीरु मारिफा है, लेकिन इंग्लिश एक फ्रेज है, इसमें ये लॉट्स ऑफ मिल्क ही होता है, इसलिए वेयर इज ए लॉट्स ऑफ मिल्क। तो अल्लबानुल कसीरु इंदका, अल्लबानुल कसीरु इंदका के यहाँ पर अल्लबानु मौसूफ है और कसीरु सिफत है। और यहाँ पर भी ये वर्ड मुजक्कर के लिए है। अब हाजिर का जो इसमें जमीर अंता अंती है, तो इनमें डिफरेंस है कि मुजक्कर के लिए का होता है और मुअन्नस के लिए की। तो यहाँ पर इंदा का है, तो जाहिर सी बात है कि मुजक्कर के लिए किसी लड़का या आदमी के लिए सेंटेंस बोला गया, तो वही यहाँ पर ब्रैकेट से हामिद लिखा गया कि अल्लबानुल कसीरु इंदका, ए लॉट्स ऑफ मिल्क इज यूथ विथ यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आइना अशयुल हारू। अशय यहाँ पर मौसूफ है और अल हारू सिफत है, और दोनों चारों लिहाज से एक है। दोनों मारिफा है, दोनों वाहिद है, दोनों मुजक्कर है और दोनों हालत रफा में है। तो वेयर इज द हॉट टी, तो अशयुल हारू इंदकी, देखिए यहाँ पर फेमिनाइन के लिए सलमा के लिए है, इसलिए इंदा की आया है। और ये तो आप लोग पहले क्लास में गुजरे कितने बार आप लोग क्लियर कर चुके हैं कि मुजक्कर के लिए का आता है और मुअन्नस के लिए की आता है, और वही दिखाया गया है। तो अशयुल हारू इंदा की, ये मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा के हालत में है, मुब्तदा और एक खबर। तो अशयुल हारू इंदा की, द हॉट टी इज विथ यू। अब इजी लग रहा है ना। अब मौसूफ सिफत बहुत इजी है, मतलब आप लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आइनल माउल बारिदु। अब उसी तरह अलमाउ मौसूफ है और अल बारिदु सिफत है, तो और दोनों मौसूफ और सिफत दोनों चारों लिहाज से एक है। तो आइना मीन्स वेयर और अलमाउल बारिदु मीन्स कोल्ड वाटर, तो इनका ट्रांसलेशन होगा वेयर इज द कोल्ड वाटर। तो अलमाउल बारिदु इंदहु, अलमाउ मौसूफ है, अल बारिदु सिफत है, और ए मुरक्कब तौसीफी क्या है, मुब्तदा है, और इंदहु। अब इंदहु यहाँ पर ब्रैकेट में जो खालिद है, इनसे आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये मुजक्कर मस्कुलिन के लिए है, और मस्कुलिन के लिए आप लोगों को पता ही है कि हु आता है। हुआ के हुआ जमीर का जो हालत जर का शक्ल है वो हु आता है। तो अलमाउल बारिदु इन द मुजाफ है और हु मुजाफिलाई, और आप लोग पढ़ चुके हैं कि मुजाफिलाई जो हमेशा जर होता है, इसलिए इसमें जमीर जब यूज होता है मुजाफ इलाई में तो हालत जर का शक्ल लेता है, इसलिए ये मुजाफिलाई, इसलिए इंदाहु आया है। तो उनके पास ठंडा पानी है, ठंडा पानी उनके पास है, तो द कोल्ड वाटर इज विथ हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आइना अलकुबुल कबीरू। एक ही वही आप लोग जो बार बार वही रिपीट हो रहा है। अलकुबुल कबीरू मौसूफ सिफत है और दोनों चारों लिहाज से एक है। अलकुब मीन्स ग्लास, अल कबीरू मीन्स बिग, तो हेयर इज द बिग ग्लास। तो अलकुबुल कबीरू इंदहा। अब देखिए इंदहा, इंदा जो मुजाफ है और हा मुजाफिलाई है, तो ये मुअन्नस के लिए है, इसलिए हा आया है। और वही अब कंफर्म कर दिया गया, ब्रैकेट में नाम देके जैनब है,
تو زینب تو فیمینائن کے لیے ہی ہوگا. اور فیمینائن کا جو ہیا ہو اس میں ضمیر ہے ان کا جو حالات جر کا شکل ہے وہ ہا ہے, اور ہا مضاف الیہ ہے جو حالات جر ہی ہوتا ہے. تو الکوب الکبیرو مبتدا ہے اور ایک خبر ہے کہ بگ گلاس ان کے پاس ہے. تو دا بگ گلاس از وتھ ہر. کلیئر. اب نیکسٹ یہاں پر آسیلہ ہے, کچھ سوال ہے. تو دیکھیے سوال میں کیا ہے. اب سوال پڑھنے میں کچھ مطلب پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ لوگ جو پہلے مطلب ابھی جو پڑھ چکے ابھی وہی سب ہے. تو دیکھیے کیا ہے. تو ماذا عندک یا حامد, کہ تمہارے پاس کیا ہے یہ حامد. تو what do you have حامد, تمہارے پاس کیا ہے. تو ان کا آنسر آپ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ تو ابھی اتنا سینٹینس پڑھے ہیں. اب پہلے لیسن سے اب تک تو پڑھ ہی رہے ہیں, تو سینٹینس بنانے میں کیا پریشانی ہے. تو اندی فنجانن صغیرن, کہ میرے پاس. اب دیکھیے فنجانن موصوف ہے اور صغیرن صفت ہے. موصوف صفت مل کے خبر آیا ہے. تو میں پہلے بھی بتائی کہ موصوف مرکب توصیفی شروع میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے آخر میں آیا ہے اور یہ دونوں ناکرہ ہے. اب موصوف صفت ناکرہ ہے اس لیے خبر ہے. تو موصوف صفت دونوں مل کے دونوں چاروں حالت میں ایک جیسا آیا ہے. تو اندی فنجانن صغیرن, آئی ہیو اے اسمال کپ. اب ماذا فل فنجانی صغیری, اب دیکھیے الفنجانی موصوف ہے اور الصغیر صفت ہے. اب دونوں حالت یہاں پر حرف جر, فی حرف جر ہے اس لیے جر ہمیشہ اس کے بعد والا اسم کو زیر کرتا ہے, اس لیے فل فنجانی. اب موصوف ہے, یہ موصوف اگر زیر ہے تو ظاہر بات ہے کہ صفت بھی زیر ہوگا, اس لیے الفل فنجانی صغیری. تو دونوں حالات جر آ گیا. اب سمجھ میں آ رہا ہے. اب مرکب توصیفی مجرور ہے کیونکہ اس کے پہلے حرف جار ہے. تو فی کے وجہ سے حرف جار کی وجہ سے ان کو کیا ہوا, زیر ہوا, اور زیر جس کو ہوا وہ تو موصوف ہے اس لیے صفت کو بھی زیر آ رہا ہے, زیر آئے گا. تو موصوف صفت اب حالات جر ہو گیا اور دونوں معرفہ ہے اور دونوں واحد ہے اور دونوں مذکر کا لفظ ہے. تو ماذا فی الفنجان الصغیری. اب کلیئر ہو رہا ہے نا کہ یہاں پر کیسے مطلب موصوف صفت کیسے چاروں لحاظ سے ایک ہو رہا ہے. اب یہاں پر مرکب توصیفی جو ہے یہ مجرور ہوگا کیونکہ اس کے پہلے حرف جار ہے. تو ماذا فی الفنجان الصغیری, واٹ از ان دا اسمال کپ, چھوٹا کپ میں کیا ہے. تو فی الفنجان الصغیری شیء حارٌ. اب جار مجرور اے مبتدا ہے اور اے خبر ہے. اب دیکھیے فی حرف جار ہے اور ان کو زیر دیا ہے, ان کے بعد جو اسم ہے الفنجانی زیر دیا ہے اور اے ایکچوئل میں کیا ہے, موصوف ہے, اس لیے صغیری بھی صغیری صفت ہے اس لیے ان کو بھی زیر آیا ہے. اور موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی ہو کے مجرور ہوا اور جر مجرور اے مبتدا ہے. اب دیکھیے شیء حارٌ, شیء بھی کیا ہے, موصوف ہے اور حارٌ صفت ہے اور دونوں دیکھیے چاروں لحاظ سے ایک ہے, ناکرہ ہے, واحد کا لفظ ہے اور حالات رفع میں ہے. اور یہ دونوں مل کے کیا ہوا, خبر ہوا کہ فی الفنجان الصغیری شیء حارٌ, ان دا اسمال کپ دیئر از اے ہاٹ ٹی. اب کلیئر ہو رہا ہے. اب نیکسٹ دیکھیے کہ ماذا عندکی یا سلمہ. عندکی مضاف الیہ ہے, آپ لوگ گزرے کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ اے سلمہ تمہارے پاس کیا ہے. واٹ ڈو یو ہیو سلمہ, یہاں پر سلمہ ہے اس لیے کی آیا ہے.
की इसमें जमीर आया है। तो इंदी कुबुन कबीरुन, मेरे पास देखिए कुबुन मौसूफ है और कबीरुन सिफत है, और दोनों चारों लिहाज से एक आया है, और ये दोनों खबर है कि मेरे पास एक बड़ा ग्लास है, तो आई हैव ए बिग ग्लास। अब माजा फिल कुबिल कबीरी, कि व्हाट इज इन द बिग ग्लास, बड़ा जो ग्लास है उसमें क्या है। तो वही आप रिपीट हो रहा है, आप जो पहले सेंटेंस में, पीछे सेंटेंस में आप लोग पढ़े वही रिपीट हुआ है कि मौसूफ सिफत है, चारों लिहाज से एक है, तो हालात जर है, क्योंकि मौसूफ हालात जर है इसलिए सिफत भी हालात जर आया है, और मौसूफ हालात जर में क्यों है, क्योंकि इसके पहले हर्फ जर आया है, इसलिए ये दोनों हालात जर में है, और बाकी चारों लिहाज से भी एक है। तो माजा फिल कुबिल कबीरी, व्हाट इज इन द बिग ग्लास, तो फिल कुबिल कबीरी माउन बरीदुन, अब वही एक ही रिपीट हुआ है। अलकूब मौसूफ है और इनको जेर हुआ है, क्योंकि इनके पहले हरफ जार फी है, इसलिए सिफत को भी जेर हुआ है, फिल कुबिल कबीरी, और ये पूरा मुब्तदा है। अब माउन बारिदुन, माउन सिफत है, मौसूफ है, और बारिदुन सिफत है, और दोनों चारों लिहाज से एक है, ये नाकरा है, इसलिए यहाँ पर खबर बन के आया है। तो फिल कुबिल कबीरी माउन बारिदुन, इन द बिग ग्लास देयर इज ए कोल्ड वाटर। तो आज का क्लास इतना ही था, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।